Hello student, I am Sandeep Sharma, your master teacher, and today we are going to discuss the most important questions that are important for IMO exams. And today we are covering the different type of questions that are important for the grade 5 to 8, right? So let's start with the first question here. Okay, so I hope all set now. So here we have the first question which is related to the topic dot situation. So in this particular question, when we have to solve this question, actually we have given two dots, right? So in दो dots की जो situation है उसको हमने check करना है. Suppose this is dot number 1 and this is dot number 2. Now in dot number 1, we can see here or we can observe here that ये जो dot 1 है that is in the common area of square, triangle and the circle, and the dot 2 is only in the common area of the square and the triangle, means that is not covering the circle, right? So let's check the option here. So by observation we can say uh, option A is eliminated. Why this is eliminated? Because according to the given problem figure, dot 1 can be here, but there is no place for dot 2 जहां पर अपने पास जो है ट्राइंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया कॉमन दिखे. ठीक है, सो इसलिए A will be eliminated. Now B will be eliminated again on the same situation. That means dot 1 के लिए तो यहाँ पर प्लेस है, बट डॉट 2 की सिचुएशन यहाँ पर फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, सो इसलिए यहाँ पर B एलिमिनेट हो जाएगा. Also C will eliminate. The reason is that in this particular case ना तो मुझे डॉट 1 के लिए कोई प्लेस मिल रहा है, मींस all the three areas जो कॉमन दिखने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है. Here the area common with circle and triangle and the area common with circle and square, means तीनों का कॉमन एरिया नहीं है, राइट? सो इस पर्टिकुलर केस में ना तो डॉट 1 फिट हो सकता है ना डॉट 2 फिट हो सकता है, सो वी कैन से ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड. So now let's check option D. So for option D, we can say dot 1 को हम लोग यहाँ पर सिचुएट कर सकते हैं. That means dot 1 की सिचुएशन ये है जहां पर हम इसको डाल सकते हैं. एंड डॉट 2 जो कि स्क्वायर और ट्राइंगल के एरिया को ही कवर कर रहा है, सो वी कैन से दिस इज द परफेक्ट एरिया. इधर दिस और हियर समवेयर कहीं भी आप इसको पुट कर सकते हो, तो डॉट 2 इधर आ जाएगा. नाउ वी कैन से डॉट 1 जो यहां पर सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन हमें यहां भी दिख रही है, ऑल द थ्री एरियाज. एंड फॉर डॉट 2 only triangle and square is there, so the only answer will be option D here, right? So let's check answer once again. Yes, so the right answer is option D here, right everyone? Okay, so I hope कि ये वाला मेथड आपको समझ आ गया. Now there may be 3 dots, there may be 4 dots, right? So इसी तरह से आपको वो situations find करनी है. Now next question check करते हैं. Now this is the question that is related to the non-verbal reasoning again. So here we have given problem figures, that is figure number 1, figure number 2, figure number 3, 4 and 5, right? So actually इन 5 figures में एक series का जो pattern है वो follow किया जा रहा है. अब इस series का जो pattern है वो observe करना है, और we have to find कि अगर इसके आगे मुझे 6th figure अगर गिवन ऑप्शन में से पिक करना हो तो वो कौन सा होगा. सो लेट्स चेक द पैटर्न हियर. फर्स्ट फिगर में ओनली द सिंगल फिगर इज गिवन विच इज 4 साइडेड फिगर, राइट? सेकंड में एक नया फिगर आ जाता है, सो इन सेकंड फिगर नए फिगर को ऐड करके वी हैव ओनली 2 फिगर्स, दैट इज डॉट. सो अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड को ऑब्जर्व करूं, सो वी कैन से कि हर बार नेक्स्ट फिगर में एक छोटा सा फिगर जो है वो नया आ रहा है. यानी सेकंड फिगर में हमने ऑब्जर्व किया डार्क डॉट, देन सेमी सर्कल, देन ट्राइंगल, देन दिस पार्ट, राइट? तो ये नई नई फिगर्स ऐड हो रही है. तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में भी हमें ऑल द 4 ऑप्शंस आर शोइंग देयर इज अ न्यू फिगर दैट इज हियर, राइट?
अब चेक करना है कि ये फिगर्स जो है वो एडजस्ट कैसे हो रहे हैं। तो लेट्स चेक। जब सेकंड फिगर में डॉट आया तो डॉट जो है वो इस फर्स्ट फिगर के प्लेस पे आ रहा है और फर्स्ट फिगर जो है वो यहां पर रिप्लेस हो जाती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से ये जो फिगर यहां पर था वो यहां पे आ गया, डॉट इधर आ गया। यानी अब जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी, यानी जब सेमी सर्कल आ रहा है एज ए न्यू फिगर, तो ये दोनों की दोनों फिगर जो हैं ये फिर से आगे चली जाएंगी, यानी एक इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब आप चेक कर रहे हो कि इसका सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर जो फिगर पहले है वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में है, बट एज इट इज आगे की तरफ जो है मूव हो रही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट न्यू फिगर जब आएगी वो इसके प्लेस पे आएगी, तो वो ट्राइंगल आ गया जैसे यहां पे, और ये फिगर जो है आगे मूव हो जाएंगी। सो यानी ट्राइंगल के प्लेस पे जब ये ट्राइंगल आ रहा है सेमी सर्कल के प्लेस पे, तो सेमी सर्कल आप देखोगे इधर मूव हो गया, उसके बाद जो डॉट था वो इधर आ गया, और जो इसके आगे फोर साइडेड फिगर थी वो नेक्स्ट लेफ्ट साइड मूव होना शुरू हो गई। अगेन नेक्स्ट न्यू फिगर ट्राइंगल के प्लेस पे आ जाएगा, तो ट्राइंगल जो है वो इस प्लेस से शिफ्ट होके यहां पे, देन ट्राइंगल के बाद सेमी सर्कल इधर, सेमी सर्कल के बाद जो डॉट है वो इस प्लेस पे आ जाएगा और नेक्स्ट फिगर यहां पे आ जाएगी। सो आई होप कि ये पूरे का पूरा जो मूवमेंट आप देख रहे हो, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो नई फिगर आएगी वो इस प्लेस पे आ रही है, ठीक है। अब नई फिगर हमने ढूंढ लिया कि नई फिगर सब में सेम है, तो इसलिए अब चेक करते हैं नेक्स्ट फिगर। यानी अगर नेक्स्ट फिगर मुझे ऐड करना है तो जो ट्राइंगल है वो सेमी सर्कल के प्लेस पे आना चाहिए। यानी नेक्स्ट फिगर में वी कैन से जो ट्राइंगल है वो इस पार्ट पे नजर आनी चाहिए। सो लेट्स चेक ऑप्शंस। इन ऑप्शन बी ट्राइंगल इधर होना चाहिए था, बट हियर ट्राइंगल नहीं है। डी में ट्राइंगल है, दैट इज ओके, राइट। सी में ट्राइंगल नहीं है, सी रूल्ड आउट, राइट। अब बचता है ए और डी पार्ट। अब ट्राइंगल के बाद अगर ट्राइंगल इधर है तो सेमी सर्कल को इस प्लेस पे होना चाहिए। सो लेट्स चेक। सेमी सर्कल जो है वो ए और बी दोनों में है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो है ये हमारा स्क्वायर। जो स्क्वायर है इसको अगर हम चेक करें तो हमारा जो स्क्वायर है उसमें राइट साइड बॉटम जो है वो डार्क है एंड अप साइड लेफ्ट साइड जो है दैट इज व्हाइट कलर। बट इन फिगर ए ये रिवर्स है, राइट। सो दैट मीन्स ए में ये डिफरेंट नजर आ रहा है, सो ए इज रूल्ड आउट। सो ओनली द ऑप्शन दैट विल सेटिस्फाई द कंडीशन दैट विल बी ऑप्शन डी हियर, राइट एवरीवन। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन जहां पर थोड़ा सा हमें जो है माइंड एक्सरसाइज करनी पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड वन बाय वन ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट किया, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन देख लें, दैट इज आंसर डी, जो कि हमने भी बिल्कुल सही फाइंड किया यहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I'm giving you some time, just observe and find the answer. Okay students, so I hope आपने ट्राई किया, right? So let's check. इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, so we have two different words and इनके different code given है, ठीक है, ये code given है। Again there is a rule, most of the cases में जब हमारे पास टू और मोर देन टू डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन एंड देयर कोड्स आर गिवन, और मुझे थर्ड वर्ड का कोड कैलकुलेट करना है, सो देयर आर द चांसेस दैट कि थर्ड वर्ड के जो लेटर्स होंगे वो फर्स्ट और सेकंड में हमें कॉमन दिखेंगे और उन्हीं में से हम कोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका है पैटर्न ढूंढो, राइट। पैटर्न हम तब ढूंढेंगे जब हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है या कुछ ही लेटर कॉमन दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं। बट यहां पर अगर हम चेक करें तो जितने भी लेटर्स इस वर्ड में यूज किए गए हैं वो कॉमनली इन दोनों में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका कोड चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड था
इस वर्ड का कोड अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5 एंड 6, सेकेंड वर्ड जो गिवन था इसका कोड अगर हम देखें दैट इज 7 8 6 9 एंड 5, और जिसके लिए हमने कोड फाइंड करना है वो वर्ड हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब चेक करो, here we have f, here we have f, so code for f is 7, here we have I and code for I is 2, so now 2, e का कोड यहां पे गिवन है 5, so here we can write 5, r is given 6, okay, c का कोड है 9, so here 9, and e का कोड है अगेन 5, इधर 5 आ गया। सो अगर हम सही आंसर सही ऑप्शन देखें दैट इज 725695 विच इज ऑप्शन बी हियर, राइट। तो आई होप यहां पर क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन ट्रिक क्या था कि हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है, पहले कॉमन लेटर्स को ढूंढना है, और कॉमन लेटर्स के साथ वो कॉमन कोड भी हमें मिल जाते हैं देन गुड, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम उसको पैटर्न बेस पे चेक करेंगे। ठीक है, so this is again important question और important variety coding decoding की। Now the next question, here we have the answer of this question, right? So this is the next question. In this particular question we have to find the missing number, और काफी अच्छे क्वेश्चन आईएमओ में जो है इस टाइप से रिलेटेड हमें मिलते हैं। ठीक है, so I'm giving you some time, just think about that and then we will discuss. Okay everyone, सो आई होप कुछ आइडिया मिला होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर है 41 और इधर है 85, 85 का जो लिंक मिलेगा वो 6 और 7 से रिलेटेड हो सकता है, और 41 का 4 और 5 से रिलेटेड हो सकता है, यानी 4 और 5 को हम किस तरह से ऑपरेट करें सो दैट 41 मिल जाए। अब अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मिल रहा है 20, 20 का डबल करते हैं सपोज, यानी 4 इंटू 5, सपोज ये लॉजिक मेरे माइंड में आ रहा है 4 इंटू 5, राइट, एंड दैट इज 20, और इसका डबल किया विच इज 40, और उसमें हमने +1 किया तो ये हमें मिल रहा है 41। तो एक लॉजिक तो ये बन रहा है। अब देखते हैं अगर यही लॉजिक यहां पे काम कर गया देन ओके। सो अगर मैं 6 इंटू 7 करता हूं विच इज इक्वल टू 42, now 42 multiplied by 2, then here we are getting 84, then 84 plus 1 is equal to 85। बोलिए ठीक है, सो ये हमारा पैटर्न बन गया, यानी यहां पर जो हम चीज सोच के चल रहे हैं वो यहां पर मिल रही है। सो ऑन द सेम लॉजिक अगर मैं 3 और 2 पे चेक करता हूं, सो 3 और 2 के लिए व्हाट वी हैव दैट इज 3 इंटू 2 विच इज 6, इसका डबल किया विच इज 12, और +1 करते हैं विच इज 13, सो 13 इज हियर, सो वी कैन से आंसर इज ऑप्शन ए। बोलिए, सो पहले ही अगर आइडिया क्लिक कर गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लिक नहीं करता है फिर हमें लॉजिक को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो ये तो एक इसका हो गया वन मेथड, जहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने कितने सिंपल वे से जस्ट सोचा कि मल्टीप्लाई करते हैं, डबल किया, मुझे 41 बना के देखना है, 41 जिस वे से बना उसी वे से 85 बना के देखना था। अगर दोनों वेज में हमारा जो ये पर्टिकुलर पैटर्न सक्सेसफुल होता है देन वी कैन से कि वो सेम लॉजिक इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड जो है उसको अगर हम सोचें तो हम इसको इस वे से भी चेक कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है। नाउ जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं देन यू विल गेट हियर 16 प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 41। ठीक है, सो लेट्स चेक क्या ये यहां पे काम करेगा, स्क्वायर ऑफ 6 plus square of 7, so this will give us 42
36 plus 49 here. So here we have two numbers 36 and 49. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है हमें 85, यानी ये लॉजिक भी काम कर रहा है. सो ऑन द सेम वे वी कैन से स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13. तो मैंने दो अलग अलग लॉजिक आपको दिए और इन दोनों लॉजिक के बेसिस पे आंसर हमारा सेम आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए हियर. राइट एवरीवन. सो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कुछ तो आइडिया आपको समझ आया होगा कि हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है. स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो लेट्स चेक द आंसर अगेन जो हमने यहां पर फाइंड किया था. यस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 13. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि आईएमओ में पूछी जाती है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So this is the question which is related to the direction sense, right? And I hope you have the basic concepts related to this topic. So let's start. In direction sense, what we have given, as we know, this is north, south, east, and west, right? So Ali walks 10 kilometers towards north. Suppose he is starting from this point. This is S point. And he is moving towards north. So this one is the north direction, 10 kilometers. Now from here, he turns to the right. So agar person north direction में move कर रहा है, then we can say left और right ये position होगी, तो right move करना है उसको. That means इस तरफ को, towards east. और यहां पर right move करके उसने move किया distance 2 kilometer, right? So after that he turns to the left. अब यहां से वो लेफ्ट टर्न करता है, मतलब ठीक नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहा है. सो लेफ्ट टर्न करने के बाद ही ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर. सो 6 किलोमीटर इज हियर, ये उसका फाइनल डिस्टेंस था, राइट. देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन. अब यहां से फिर से वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, और लेफ्ट साइड टर्न करने का मतलब इस डायरेक्शन में मूव करता है, right? So the question is, in which direction is he moving now? So अभी वो उसने लेफ्ट टर्न किया यहां से और लेफ्ट टर्न किया इस तरफ, और इस तरफ अगर हम देखें तो कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर, राइट. सो लेट्स चेक. yes, so our answer is right, which is option D here. सो डायरेक्शन सेंस में लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है. ईस्ट वेस्ट किस तरफ है, अगर पर्सन ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और वो ईस्ट डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सपोज लेफ्ट मूव कर रहा है, तो उसका लेफ्ट मूव करने का मतलब है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द डायरेक्शंस, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें. So this is again the next question, which is related to the non-verbal reasoning again. Okay, so giving you some time, think about the logic. Right, everyone. So what we have given here, we have given there are some components in problem figure, which is figure X, और ये सेम जो components हैं वो हमने फाइंड करने हैं गिवन ऑप्शन में से कहां पर है, मतलब ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, सेम होने चाहिए. सो लेट्स चेक. अगर मैं ऑप्शन ए लेकर के चलता हूं तो ए बाय ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि यहां पर ए को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं. रीजन इज ए के कंपोनेंट्स में फिगर एक्स का एक कंपोनेंट मुझे ऐसा है जो मिसिंग नजर आ रहा है, दैट इज पेंटागन. तो पेंटागन यहाँ कहीं नहीं है. और दूसरा अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे हेक्सागन एक बार यूज किया, बट यहाँ पे हेक्सागन 2 बार आ रहा है, राइट. सो ए इज एलिमिनेट. नाउ बी चेक करते हैं. इन
प्रॉब्लम फिगर जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, अगर वो कंपोनेंट हम यहाँ बी में चेक करें, सो व्हाट वी हैव, ये ट्राइंगल, सर्कल, ओके, देन सर्कल एंड स्क्वायर, दैट इज ओके, ये दोनों हमें दिख रहे हैं कंपोनेंट्स. अगेन ऑक्टागन इज देयर, राइट, हेक्सागन इज देयर, राइट, pentagon is there, right, and this circle with lines also given, so means all components are present in option B of figure X. So we can say the answer of this question is option B here. So C और D को अब हम eliminate कर सकते हैं इस केस में, right. D के eliminate होने का रीजन है ये वाला फिगर, और C को अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहां पर अगेन वी कैन से pentagon is missing, right. So C is eliminated, D is eliminated, A is eliminated, and the answer is option B here. So एक इजी क्वेश्चन था. इस टाइप की वैरायटी जो होती है दैट इज मोस्टली इजी ही मिलती है, ठीक है. सो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ये आइडिया आपको मिल गया है. ओके एवरीवन, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. That is again an important question which is related to the Venn diagram, right? So what we have given, we have four options, right? इन फोर ऑप्शंस से हमने ये चेक करना है कि यहां पर जो हमारे पास ये जो डायग्राम गिवन है ये किस ऑप्शन में फिट होगा. ये जो डायग्राम है ये किस ऑप्शन में फिट होगा, right. So we have four different options, so let's check. चलिए, सो फिगर को चेक करना है. ऑप्शन ए, अगर हम यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करें इसका, एनिमल, एलिफेंट्स एंड वॉल्स, राइट. सो वी कैन से ये दोनों ही एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे, बट दोनों आपस में इनके अगर मैं करेक्टर्स देखूं इनके, तो वो सारे के सारे डिफरेंट है, राइट. तो डिफरेंट करेक्टर्स हैं बट दोनों एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. सो जो इसका जो वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें ऐसा दिखेगा, यानी ये हमारा एनिमल्स का सर्कल आ गया, राइट. ये हमारा एलिफेंट्स आ जाएगा और ये वॉल्स आ जाएगा. तो एलिफेंट और वॉल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट दोनों ही कैटेगरीज एनिमल्स में काउंट होंगी. सो दैट मीन्स ये एक डायग्राम हमें मिल रहा है. अब बी में चेक करते हैं, ग्रेजुएट्स, टीचर्स, ह्यूमन बींग्स. तो जितने भी टीचर्स हैं दे आर, ऑल टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स, एंड all the graduate persons जो होंगे that are also the human beings, right. So ह्यूमन बींग्स के सर्कल में ये दोनों सर्कल आ जाएंगे, और इनमें अगर मैं कॉमन चीज फाइंड करूं देन वी कैन से टीचर्स और ग्रेजुएट, मतलब सम ग्रेजुएट्स आर टीचर्स और सम टीचर्स आर ग्रेजुएट, राइट. ये बन सकता है, बट ऑल के बेसिस पे हम देखें है तो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, राइट. तो ये सर्कल बन रहा है, ये हमारा वेन डायग्राम इस केस में आ रहा है. अब हम चेक करते हैं थर्ड वन, ब्रिक्स, हाउसेस एंड ब्रिजेस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, सो वी कैन से सम हाउसेस आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स and some bridges are made from bricks, right. So इस पर्टिकुलर केस में जो ये डायग्राम हमें दिख रहा है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिगर में जो डायग्राम दिया है उससे रिलेट करता है. तो एक बार डी भी चेक कर लेते हैं. इन ऑप्शन डी व्हाट वी हैव गिवन, व्हीकल्स, बसेस एंड कार्स. सो वी कैन से ऑल बसेस एंड ऑल कार्स आर व्हीकल्स, बट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, सो वी कैन से द सी विल बी द आंसर हियर, द ओनली ऑप्शन दैट विल सेटिस्फाई द गिवन फिगर, एंड दैट इज ऑप्शन सी. सो ये फिगर और आप यहां पे चेक कर सकते हैं, एंड दिस वन फिगर, दैट आर द सेम सिचुएशन, राइट. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा,
एंड अगेन काफी क्लैरिटी आपको मिली है, मैंने डिफरेंट वे से आप लोगों को हर डायग्राम जो है सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। That is very interesting question. Here we have to find the minimum number of straight lines, right? So minimum number of straight lines. अब देखिए, there are two ways. या तो आप सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस कैलकुलेट कीजिए और फिर वर्टिकल लाइंस कैलकुलेट कीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, राइट? तो ये एक यहाँ पर वे हो सकता है। सेकेंड वे, अगर हम थोड़ा सा इसको फास्ट करना चाहें, सो वी कैन से all the figures here we have given the rectangles, all the rectangles are given, so just count the total number of rectangles because we know एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हम टोटल 4 स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मिल गई तो हमें स्ट्रेट लाइंस भी मिल जाएंगी। सो दिस इज रेक्टेंगल नंबर 1, this is rectangle number 2, and this one is rectangle number 3. So vertical rectangles we have 3. Now horizontal rectangles अगर हम check करें, so this is rectangle number 4 and this is rectangle number 5. So each rectangle have total 4 lines. So 5 into 4, that will give us 20. So that means there are total 20 straight lines, right? So the answer of this question is option C. Got it? So एक शॉर्टकट मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये शॉर्टकट आपको सही लगा, अदरवाइज आप इसको अगेन चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बेसिस पे। मींस ये हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, देन लाइन नंबर 4, राइट, देन लाइन नंबर 5 एंड सो ऑन। सो इससे भी आप इसको चेक कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको यहां पर ये मेथड बताया है, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत सही तरीके से फिट होता है, राइट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वो चेक करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओह गुड। तो एक और हमारा जो क्वेश्चन है ये नंबर पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। So here we have given 6 plus 3 39, 9 plus 4 513, 6 plus 5 is 111, तो 18 plus 16 कितना होगा? Options are given, right? So such type of questions अगर हमें solve करने हैं तो हमें एक particular logic ढूंढना है कि 6 और 3 को add करके 39 बन रहा है या there is some logic जहां पर कुछ चीजों को ऑपरेट करके, कुछ नंबर्स को ऑपरेट करके we can find 39, राइट? सो लेट्स चेक। अगर हम 39 को अच्छे से चेक करें तो एक लिंक जो है वो 39 में 3 और 9 के जो डिजिट्स हैं वो 6 और 3 से कुछ रिलेटेड है। कैसे? 6 और 3 यानी ये 6 प्लस 3 जो गिवन है, अगर इन डिजिट्स को का हम लोग डिफरेंस फाइंड करें, दैट इज 6 माइनस 3, राइट, विच इज इक्वल टू 3। and next we have given 6 plus 3 which is equal to 9। तो अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को कंबाइन कर दूं then number will be here 39। अब चेक करते हैं कि यही लॉजिक क्या यहां काम करेगा। सो 9 माइनस 4, पहले हमने डिफरेंस फाइंड किया विच इज इक्वल टू 5, देन 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों नंबर्स कंबाइन किए, देन वी विल गेट 513। सो अब काम इजी लग रहा है। सो लेट्स चेक 6 माइनस 5 हियर एंड नेक्स्ट वन इज 6 प्लस 5 एंड हियर वी हैव that is 6 minus 5 will give us 1 and 6 plus 5 will give us 11 और दोनों नंबर्स को हम कंबाइन कर दें then we will get answer 111, right? So on the same line, if we have 18 plus 16, so what we can write it as, that is 18 minus 16 which is equal to 2 and 18 plus 16 which is equal to 34, then combining both numbers we
we have 234. Right? So the option is here, option C. था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो लॉजिकली अगर हम चीजों को सोचेंगे तो वी कैन फाइंड द बेटर रिजल्ट हियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. So answer is 234. Okay. So this is another sequence test variety. In this particular question, what we have given, एक सीरीज हमें एक दे रखी है डिफरेंट कैरेक्टर्स की, जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, राइट, और कुछ सिंबल्स भी हैं. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप, अगर हम इसमें सारे के सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर दें, दैट मीन्स सपोज क्रॉस कर देते हैं, 5 क्रॉस्ड, 4 क्रॉस्ड, राइट? याद रखना है डिजिट्स को क्रॉस करना है हमने. 1, then 6, then 2, then 7, then 9. अब चेक करते हैं कि हमारे पास जो बचेगा वो यहां पर लिख देते हैं, DIH स्टार डॉलर KELBARM, then symbol, then J and this one, right? और इसके बाद C and G, right? So now according to question, आपने यहां से डिजिट्स को रिमूव कर दिया. अब आपके पास जो यहां पर लेटर्स और सिंबल्स बचे, उसके बेसिस पे हमने चेक करना है सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड. सो राइट एंड मतलब ये हमारा लेफ्ट एंड है और ये हमारा राइट एंड है. सो राइट एंड से सेवंथ करेक्टर ढूंढते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? So here we have this one. ये हमारा सेवंथ करेक्टर आ गया. और इस सेवंथ करेक्टर से नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है, दैट इज सेइंग लेफ्ट ऑफ सेवंथ करेक्टर हमने फाइंड करना है फोर्थ. सो फोर्थ वन विल बी हियर, दैट इज यहां इस सेवंथ से फोर्थ की तरफ चलो, आई मीन लेफ्ट की तरफ चलो. सो ये बनेगा 1, 2, 3 and 4. So fourth character is now B, right? So answer is option A here. Right everyone? So this is the way where we can solve such type of questions. So here the answer is option A. Now, so answer is option A here. So let's check the next question. So giving you some time, solve it. Okay everyone. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 6 and 13. अगर हम 6 और 13 के बारे में सोचें तो जो नंबर 13 है वो 6 के डबल से थोड़ा सा ज्यादा है. कितना ज्यादा है? दैट इज +1. यानी अगर मैं यहां पर 6 का डबल लिख के उसमें +1 करता हूं तो मुझे यहां पर 13 एज ए आंसर मिलेगा. ठीक है. अब अगर मैं 13 और 28 को चेक करूं तो जो नंबर 28 है वो 13 के डबल से कुछ वैल्यू ज्यादा है. सो लेट्स चेक कितना ज्यादा है. तो यहां पर हमने 13 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इसमें +2 किया. सो हमें यहां पर मिला 28. सो ऑन द सेम लॉजिक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग हियर द नंबर उसका डबल और उसमें पहले हमने 1 ऐड किया फिर 2 ऐड किया. सो सीक्वेंस वाइज 1 के बाद 2 आ रहा है तो नेक्स्ट 3 आना चाहिए. सो 28 का डबल, राइट, और इसमें
plus 3, yani 28 into 2 is 56, 56 plus 3, that will give us 59. So definitely यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 59. तो एक बार चेक जरूर करना है कि नेक्स्ट अगर 122 भी इसी लॉजिक पे सही आता है, देन दैट मीन्स हमारा लॉजिक जो है वो 100% सही है. तो 59 इज देयर. सो अब हम 59 इंटू 2 करेंगे और प्लस 4 करेंगे, then you will get the next number which is 122 here, right? So in this way we can say the right answer will be 59, which is option C here. तो एक easy question था, right? और ये क्वेश्चन अगेन मिसिंग नंबर या फिर नंबर पजल से रिलेटेड था हमारा, एंड अगेन इंपॉर्टेंट वैरायटी में से एक. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो काउंटिंग फिगर्स में ये क्वेश्चन जो है वो हमारा आएगा और इसमें हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सो लेट्स चेक. दिस इज अवर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 5. लेयर 1 में अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास लेयर 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, हियर 1 2 3 4 5, यानी लेयर 1 में हमें 5/5 मिलेगा. लेयर 2 में एक लेयर कम होगी, बट यहां पर सेम है. सो अगेन यहां पर हमें मिलेगा लेयर 2 में 4/5. Layer 3 is of 3/5. Then fourth one is 2/5. And then layer fifth जो हमें मिलेगा that is 1/5. So let's check. 5/5 means 25, right? Here we have 20. Here we have 15. Then 10. Then 5. Right? So this is the way to solve or to find the number of cubes here. So number of cubes are 25 plus 20, that is 45. 45 plus 15, that is 60. 60 plus 10, that is 70. And 70 plus 5 is 75. So the answer of this question is option B here. Got it, everyone? Okay. So let's check the answer. Yes. So right answer is here option B. Right? I hope कि इस पर्टिकुलर केस में हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, राइट, ये आपको क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन. Here we have to find the number of squares. Now try yourself, giving you some time, then we will discuss. Okay everyone, so let's check. हमारे पास यहां पर ये एक बड़ा स्क्वायर तो दिख ही रहा है, ठीक है. सपोज इसको हम अगर लेबलिंग कर लें, दिस इज ए बी सी डी. तो ये ए बी सी डी वाला जो स्क्वायर है दैट इज स्क्वायर नंबर 1. ई एफ जी एच, ये जो लेबल हमें ई एफ जी एच वाला हमने यहां पे मार्क किया, दैट इज द स्क्वायर नंबर 2. ओके, अब हम इसमें स्मॉल स्क्वायर जो है उनको चेक करते हैं. सो स्मॉल स्क्वायर्स अगर हम यहां पर चेक करें, यू कैन सी हियर दैट इज दिस वन. सो इस टाइप के टोटल 4 स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं, यानी दिस इज स्क्वायर नंबर 3, स्क्वायर नंबर 4, स्क्वायर नंबर 5 एंड स्क्वायर नंबर 6.
राइट। इसके अलावा आपको इस टाइप के स्क्वायर्स भी काउंट करने हैं। सो ये भी हमें टोटल 4 मिल रहे हैं, दैट इज दिस इज स्क्वायर नंबर 7, square number 8, square number 9 and square number 10. So total here we have 10 squares, right? So answer of this question is option A. So I hope कि इस केस में how to find the squares लेबलिंग करके और नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करके वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एम्प्लॉइज का कोड गिवन है, ठीक है। सो लेट्स चेक। अब यहां पर हम लोग जो है, जो मेथड इससे पहले हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे यूज किया था कि 2 और मोर देन 2 कोड्स आर गिवन। अब आप देखोगे कि एम्प्लॉइज और फर्नीचर में ज्यादातर लेटर्स जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे के कोड जो है वो इसमें काम नहीं करेंगे, तो हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। सो हियर वी हैव कोड DLOKOXDDR, राइट। सो अगेन E टू D जाना है, यानी D के बाद E आता है, लेकिन E का कोड D है, तो रिवर्स में हम जा रहे हैं, दैट मींस एक स्टेप पीछे। सो M से पहले L आता है, दैट इज -1 -1 -1, एंड हियर O से O, दैट मींस देयर इज नो चेंज, तो इसको हम अलग से मार्क कर लेते हैं। और फिर उसके बाद Y से X यानी एक स्टेप पीछे, that is -1, again -1, -1 and -1. So actually what is happening here in this particular code language, we have given कि इसमें जो हमें वर्ड गिवन है उस वर्ड का जो सेंट्रल लेटर है उसका कोड वही है जो वो खुद एक लेटर है, ठीक है। और इससे पहले वाले लेटर्स और बाद वाले लेटर्स में पैटर्न -1 यूज हो रहा है, गॉट इट। तो अब हम यही सिचुएशन जो है यहां पर अप्लाई करेंगे, और यहां पर हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी यूज करेंगे। दैट स्मार्ट वर्क इज कि इस पर्टिकुलर केस में पहली बात जो सेंट्रल अल्फाबेट है, सेंट्रल लेटर जो है वो खुद एक कोड है, यानी आई का कोड आई ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो फर्स्ट लेटर है इसमें एफ गिवन है, और एफ में एक स्टेप हम रिवर्स चलेंगे तो यहां पर हमें ई मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, बी एलिमिनेटेड एंड डी एलिमिनेटेड। अब हमने ए और सी में से चूज करना है। नाउ ए और सी में भी अगर हम चेक करें तो हियर वी हैव फर्स्ट 4 लेटर्स आर सेम, ओनली ये जो मिडल लेटर है ये डिफरेंट है, ठीक है। यहां तक चेक करते हैं, बाकी आगे का जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज तो समझ आ गई कि पहला लेटर ई होगा कोड का, और मिडल लेटर जो है वो आई होना चाहिए, और इन दोनों ऑप्शन में अगर हम चेक करें सो सी इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। सो ये एक यहां पर हम अगर इस तरह का थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करें देन यू कैन सी कि हम थोड़े सा टाइम जो है वो बचा सकते हैं, दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम्स, राइट। तो अदरवाइज हर जगह पर यहां पर पैटर्न -1 -1 -1 -1 अब यूज करेंगे। तो लेट्स कंप्लीट इट। वी हैव हियर टी, क्यू, एम, then S, then T, then Q and D. So this is the complete code language, right everyone? चलिए, so this is all about the session जिसमें हमने
आईएमओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। एंड आई होप कि आज के सेशन में अगेन जो डिफरेंट वैरायटीज हमने डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड अब आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, राइट? सो नाउ दिस इज द आंसर। ओके, सो हियर we are starting All India Junior Olympiad Camp for those students which are preparing for the different Olympiad exams, right? So here is a link जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सो इस लिंक पे जाइए, रजिस्टर योरसेल्फ, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। नेक्स्ट, अगर आप वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का पार्ट बनना चाहते हैं एंड यू वांट द डिफरेंट informations from us, then fill the form. The link is given here, right? And again this link will be in the description box. Also we are on the social media handles, right? So where you can check all the things that are related to the Vedantu. ठीक है, चलिए। सो आई होप आज के इस सेशन में काफी सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।